On the basis of Walter's model, we have to solve the sum, and the sum is Shalini and Company earns what? Shalini and Company. Company name is what, beta? Shalini and Company earns rupees. So company name Shalini and Company earns rupees 6 per share. So this 6 is what, beta? This is what? Earning per share. This is like what? Earning ho gaya, right? So earning earns rupees 6 per share, that is earning per share, right? EPS. Earning per share, having capitalization rate of 10%. Capitalization rate is what, beta? 10%. So here capitalization rate 10% means what? It's a equity capitalization rate. It's what? It's a cost of capital. Equity capitalization rate, or we can say, we can refer it to that what? Cost of capital. So beta, earning per share is given, that is 6 per share. My dear students, 6 per share, and capitalization rate is also given, that is 10%. Capitalization rate is 10%, that is equity capitalization rate. Okay, clear? Samjha? Diya hai sab. And has a return on investment. Now see here, return on investment is what? 20%. Wow. Company is having return on investment, rate of return on investment is 20%, and cost of equity capital, that is capitalization rate, is 10%. Means company का earning अच्छा है, rate of return on investment 20% मिल रहा है, which is more than the cost of equity capital, that is cost of capitalization rate or capitalization rate or equity capitalization rate, सब बोल सकते हो आप उसको, right? So याद रखना इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है. अर्निंग पर शेयर है अपने पास, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और कैपिटलाइजेशन रेट इज गिवन, दैट इज 10%, विच इज डिनोटेड बाय व्हाट? के. फॉर्मूले में आपका देखा है ना, किससे डिनोट करते हो आप इसको? के से. एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको किससे डिनोट करते हो आप? डिनोट करते हो आर से. फॉर्मूला याद रखो, किससे डिनोट करते हो आप? आर से. नाउ अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, व्हाट? According to Walter's model, so Walter model, देखो ऐसा एग्जाम में मेंशन रहेगा. According to Walter's model, what should be the price per share at 30% dividend payout ratio? See this. If dividend payout ratio is 30%, what? If dividend payout ratio is what, beta? 30%. So what should be the price per share? क्या होगा market price? अरे क्या हो गया मार्केट प्राइस? P is what? That we have to calculate it. So according to Walter's model, what should be the price per share? That is symbolically denoted by what? P. You know the formula which I have advised in last lecture. So price per share, that is price per equity share, market price per equity share, which will be denoted by what? P. P. Okay. At 30% dividend payout ratio. If the dividend payout ratio is 30%, okay, if the dividend payout ratio is what, beta? 30%. Is this the optimum payout ratio as per Walter? Means according to the Walter model, is this payout ratio is optimum or not? That will be the conclusion which you have to give, right? So that conclusion will be given after the solving of sum. After we will going to solve the sum, we will give the conclusions. Don't worry. So this is the question. 8 marks का question है, right? 2018 में आ चुका है, 2018, right? So important question है. अब नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला है वही यूज करना है. जिसका भी देखो, जो भी मॉडल्स रहेगा, in that what is the theory of that model, what are the formulas of those models, जितने भी मॉडल्स हैं उनके क्या फॉर्मूला है, सबके फॉर्मूले डिफरेंट है, तो सब फॉर्मूले के बेसिस पे अपने को फॉलो करना है. दैट्स इट, राइट? एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द कंक्लूजन. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ग्रुप पे सेंड किया है मैंने, ठीक है, वहां ओपन करो. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो एवरीवन सिट विद योर कैलकुलेटर, pencil, pen, everything.
Now we will going to solve it step by step. चला चलो. So we will solve it step by step. So for that, I'll share the screen. Now see, directly we have to solve it step by step. So see, first solution. Solution. Now, in this solution, first company name is what beta? Shalini and Company. Na? See, question निकाल के रखो सामने. Shalini and Company. Okay. Shalini and Company. This is the name of the company, Shalini and Company. Now see, what we have to find out, we have to compute the market price. So computation of what beta? Computation of market price. Computation of what? Market price, right? Under which model? Walter model. Computation of market price under Walter model. Step by step solve with me. Walter's model. Right? So computation of market price Walter's model के अंदर solve करना है. तो चलो. So the formula everyone knows, that is P is equal to, formula दिखा दो. क्या formula है under Walter's model? P is equal to what? D plus, पता है ना सबको formula? Everyone remember it ना? So P is equal to what? D plus what? E minus D. P is equal to what? D plus E minus D. Then R upon K, right? Divided by K. So this is the formula, right? That everyone knows about this. ये formula मैंने last lecture में भी पूरा theory में ही बताया है, सब explain किया है, right? So computation of market price, that is P is equal to what? D plus E minus D, R upon K. So this is the formula to calculate market price under Walter's model. Under which model बेटा? Walter's model. ठीक है? चलो, अब ये फॉर्मूले में जितने भी सिंबॉलिकली आपने शो किए हैं, सबका मीनिंग क्या है वो लिख लो. ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या है? P. ठीक है, so here P stands for what? Market price per equity share. P is equal to what? Market price per equity share. Then D is equal to, D क्या है अपना? Dividend per share. Is what beta? Dividend. What? Dividend per share, right? So here D is equal to what? Dividend per share. Okay, clear? Now dividend per share कितना है तेरा निकालो. Market price तो अपने को finally calculate ही करना है P, but dividend per share is given in the question ना. See,
what is given? 30%. Dividend payout ratio is what? 30%. So how to calculate dividend per share? Easily you can calculate it. That is 30% है. Dividend payout ratio is what? 30%. So 30% of what? 30% of what? किसके ऊपर मिलेगा? Earning के ऊपर. That will be given on earnings. And earning is what? ₹6. भाई डिविडेंड आपको अर्निंग्स के बेसिस पे मिलेगा, अर्निंग के बेसिस पे डिविडेंड होगा, अर्निंग के बेसिस पे रिटेन अर्निंग्स होगा, राइट है. सो 30% ऑफ ₹6. अब ₹6 आपने अर्न किया है, उसका 30% आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो बाकी 70% रखा होगा ना. दैट इज बाकी 70% आपने रिटेन अर्निंग्स किया, ऐसा एज्यूम करोगे आप. तो ये 30% ऑफ ₹6, तो कितना आ गया इधर? दैट इज ₹1.80. क्लियर है बेटा? सो 1.80 is what? Your D. 1.80 is what? Your D. That's it. Simple. Okay? Clear? मालूम पड़ गया? चलो, D भी हो गया. अभी नेक्स्ट E. E is what? Earning per share. Earning per share. Our earning per share is what? ₹6. Earning per share is directly given, that is ₹6. Then after that what? E minus D. तो E भी आ गया है, D भी आ गया है, तो that is what? Retained earnings. वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन दिखा देता हूँ. चलो, E minus D means retained earnings per share. E minus D is what बेटा? Retained earning per share, right? Retained earning per share. Okay, so what will be the retained earnings per share? वो शो कर दो. देखो, ₹6 है आपका. E minus D. Minus D is what बेटा? 1.8. So your retained earnings will be what? 4.2. That's it. So your retained earnings is what? 4.2. That is E minus D. Okay, that is what? E minus D. Simple. Then after that, R and K. So R is what? Rate of return on investment. So that is what? Rate of return on investment. Rate of return on what beta? Investment. Got it? So rate of return on investment is what? R is what? 20%. Finally, K. Finally, what beta? K. Now K is what? Cost of capital. That is capitalization rate. Cost of capital or equity capitalization rate or capitalization rate. Capitalization rate. Okay. So capitalization rate is what? It is given how much? 10%. Again. See, everything is here. All the information is here. So now we have to use all the information and put in the formula and get the answer. Right? Now use the formula and get the answer. सब कुछ आ गया अपना. What is D? What is E? E minus D, R, K, everything. तो चलो अभी फॉर्मूला यूज करो. That is P is equal to. So क्या था आपका? फर्स्ट D. D कितना है? 1.80.
So D is what? 1.80. Okay, that is what D. Samjha? Got it? Come on. 1.80 D. Then what plus? E minus D. E minus D तो आप निकाल ही सकते हो डायरेक्ट भी, बट मैं इधर स्टेप दिखा दे रहा हूँ. E माइनस डी कितना आया था, आपने निकाला था ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है नहीं. देखो इधर किया है ना आपने, E माइनस डी 4.2. दिस इज व्हाट 4.2, तो आप डायरेक्ट लिख लो ना 4.2. So this is 4.2. डायरेक्ट आंसर आया अपना. दिख रहा है ना ये, दिस इज व्हाट E माइनस डी. दिस इज व्हाट E माइनस डी. ₹6 minus ₹1.8. So 1.8 plus 4.2, right है, clear है. Then what? R upon K. R is what? 20%, and you know that 20% can be written as what? 0.2. 0.20 divided by 10% can be written as what? 0.1. 0.1. ठीक है. 20% is what? Can be written as 0.2, and 10% can be written as 0.1. Okay. Divided by K. K is what? 0.1. That is 10%. Okay. Chalo. So 1.80 plus 4.2, ये स्टेप तो एक्स्ट्रा हो गया है. 0.2 और ये कितना हो गया? ये तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, पता है सबको. तो कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 0.1. सो 1.80 प्लस 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया बेटा आपका? 8.40. राइट है आंसर? आंसर चेक करना. 8.40 डिवाइड बाय 0.10. सो 1.8 प्लस 8.40 कितना आया आंसर? 1.8 प्लस 8.4 कितना हो गया? 10.2. 10.2 डिवाइडेड बाय 0.1. ओके, चलो करो जरा, डिवाइड करो, कितना आ रहा है? चलो आई वांट आंसर फटाफट चैट बॉक्स में. याद रखना, जिसका जिसका आंसर आएगा सब रिकॉर्ड रहेगा इंटरनल के लिए. वेरी गुड धनश्री, वेरी गुड. 102, शाबाश. 102, वेल डन धनश्री, मिनल, शांतन, वेरी गुड बेटा. प्रणवती, शाहिल, साहिल, राकेश, very good. So 102. So final answer is what? 102, and this is what? P. Okay, well done everyone. I can see the answers from many students. Very good. Shabash. Well done Shreya, Anushka, Anjali, Naman. Very good. Oishali, Mohak. Well done everyone. तो बेटा ये हो गया अपना मार्केट प्राइस आ गया 102 रुपीज का साइन डालना है तो डाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है. फाइनली पता ही है कि रुपीज में ही रहेगा. ठीक है. सो मार्केट प्राइस इज व्हाट? 102. व्हाट इज द मार्केट प्राइस? 102. एज पर वोल्टर मॉडल मार्केट प्राइस इज 102. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम द मार्केट प्राइस, अकॉर्डिंग टू हिज थियरी द मार्केट प्राइस इज व्हाट? 102. याद रखना. अब सुनो, एक एनालिसिस देखो. एवरीवन सी हियर. ठीक है. देखो ये तो ठीक है, मार्केट प्राइस है 102. अभी समझ लो मार्केट में व्हाट? मार्केट में अगर आपका मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस, एज्यूम इट, इफ मार्केट प्राइस है आपका 100 रुपीज है.
इफ योर मार्केट प्राइस इज व्हाट बेटा 100, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस आपका 100 है और वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, Walters model, according to Walters model, your market price calculated is what? 102, right? So beta, according to his theory, according to Walters model theory, if you follow Walters model theory, so according to his theory, your shares are overvalued. क्या? Your shares are what? Overvalued हो रहा है कि नहीं था? अरे भाई मार्केट प्राइस, मार्केट में शेयर का प्राइस है 100 और अकॉर्डिंग टू, इफ यू आर फॉलोइंग वॉल्टर्स मॉडल थियरी, सो योर मार्केट प्राइस इज 102. इट मींस व्हाट? शेयर्स आर ओवर वैल्यूड. क्या? शेयर्स आर ओवर वैल्यूड. और मैंने थियरी में बताया, अगर शेयर्स ओवर वैल्यूड है तो सेल ऑप्शन, शेयर्स अगर अंडर वैल्यूड है तो बाय ऑप्शन. याद आ रहा है क्या? ये इतना लॉजिक अपने को इधर इंटरप्रेट नहीं करना है, बट जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होगा इन फ्यूचर, तो वो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. तो जरूरी नहीं है कि सब लोग करते हैं. अब ओवरलोड हुआ तो सेल करना, ये जरूरी नहीं कि सेल ही करते हो, वो होल्ड भी करके रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजी है, राइट है कि ओवरलोड हुआ तो सेल और अंडर वैल्यूड हुआ तो बाय. अरे कम प्राइस रहेगा तो फटाफट बाय कर लो ना स्टॉक, ठीक है. तो ये स्ट्रैटेजी है और ये सब स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट में कंसिडरेशन में लेते हैं लोग, ठीक है. अभी यही अगर प्राइस समझो 90 होता, समझो ये 90 होता, 90, ये कितना होता? 90. तो 90 हुआ मतलब क्या? शेयर्स अंडर वैल्यूड हो गया. अंडर वैल्यूड हो गया तो बाय करो, बाय स्टॉक, स्टॉक बाय करो, सस्ते में मिलेगा ना आपको, राइट है. बाय करो, होल्ड करो, प्राइस बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट होना है. ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, बराबर है. तो ये एक फंडा है, एक स्ट्रैटेजी है शेयर मार्केट में. देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज, वो समझाने बैठोगे तो 4-5 लेक्चर जाएगा खाली उसका. सिर्फ एक ही फैक्टर्स नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स है. तो फिलहाल अपने सिलेबस में वो नहीं है, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है. चलो, हाँ, जब पोर्शन खत्म हो जाएगा तो शेयर मार्केट का 2-3 लेक्चर ले लो, लेकिन जिसको इन्वेस्ट करना है उसके लिए वो ज्यादा यूजफुल है, बाकी तो नॉलेज के लिए रहेगा, तो उससे अच्छा रिवीजन करेंगे वो ज्यादा बेटर है पोर्शन का. चलो, ये हो गया अपना, ठीक है. आ जाओ, अभी कंक्लूजन डालना है. कंक्लूजन भी बोला ना, ये सम हो गया, अभी आ जाओ कंक्लूजन. सी डन. तो किसी का बाकी है ये? यस यस बेटा, टेक्निकल एनालिसिस है सब. तो ये मैं रब कर देता हूँ, उसका अपने को कोई यूज नहीं है फिलहाल. चलो नाउ, तो शेयर मार्केट में सब यूज होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर, राइट. उसके लिए एक सब्जेक्ट है SAPM, सिक्योरिटी एनालिसिस वाला, सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी मार्केट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस सब्जेक्ट है, बट आपको नहीं है फिलहाल. तो चलो आ जाओ एनालिसिस, अभी कंक्लूजन डालो. सो कंक्लूजन, राइट. कंक्लूजन, SAPM मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो नाम है उसका. हाँ, उस पर ज्यादा फोकस मत कर फिलहाल, इधर कर, वो अभी तेरे को नहीं पढ़ना है भाई. TY में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, बट आप लोग को नहीं है फिलहाल, ठीक है. चलो कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आ जाओ. देखो कंक्लूजन में अपने को डायरेक्टली क्या शो करना है. सबसे पहली बात, सब लोग क्वेश्चन देखो जो आपके सामने है, टेक्निकल एनालिसिस कर दो थोड़ा, ठीक है. आपके पास सामने आपके क्वेश्चन है, अब उसको जरा रेफर करो. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है. इधर है भाई, 20% है. कितना परसेंट है? 20, ओके. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है 10%, ठीक है. सुनो अभी, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से, मतलब जो शेयर होल्डर है उनसे पैसा आपने लिया, पब्लिक से पैसा लिया, शेयर होल्डर बनाया तो मालिक बन गए वो लोग, ठीक है. कोई भी बंदा इन्वेस्ट करेगा, शेयर खरीदेगा तो कंपनी का ओनर बन जाएगा, उतने पार्ट का जितने का शेयर लिया उसने, ठीक है.
तो शेयर होल्डर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 10% दिया है और वही शेयर होल्डर का पैसा आप यूज करोगे, इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के बाद आप अर्न कितना कर रहे हो? 20%। कितना परसेंट है? 20%, है कि नहीं? कमा रहे हो अच्छा खासा। और आप डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रहे हो 30%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है आपका? 30%। ठीक है, आप ठीक है 30% है डिविडेंड पे आउट रेशियो, 30% है, तो मार्केट प्राइस कितना है आपका? 102। मार्केट प्राइस कितना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आपका 30% है तो मार्केट प्राइस कितना है? यस, मार्केट प्राइस है आपका कितना? 102। अब क्या बोल रहा है? अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो और कम करेगा, 30 से 20 करेगा, तो मतलब नहीं है, क्योंकि आपका अर्निंग अच्छा है ना। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है? 20% है ना। तो आप उससे कम मत करो, बल्कि एक बार बढ़ा सकते हो, लेकिन 30% से कम मत करो, क्योंकि आपके पास रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, तो कम क्यों कर रहा है? राइट है। अगर आपने कम किया, अगर आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो कम किया ड्यू टू व्हाट? फ्यूचर फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, तो मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। चाहिए तो आप इसी सम में, जिसे कितना दिया है ये डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है ना, आप 20% करके एक बार सॉल्व करो, 20% करके सॉल्व करो, देखो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। करना सॉल्व, ठीक है। अभी इधर 30% के हिसाब से मार्केट प्राइस कितना आया? 102। ठीक है, आप 20% से सॉल्व करना, 20% से सॉल्व करना, 20% से मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा। राइट है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 30% आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स, देखो आपका जो अर्निंग्स है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो हाई है। तो फिलहाल ये 30% को आप डिविडेंड पे आउट रेशियो को ऑप्टिमम आप बोल नहीं सकते कि दिस इज व्हाट ऑप्टिमम। टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले लिखो, इधर आ जाओ, कंक्लूजन लिखो। इट कैन नॉट बी, it cannot be taken, it cannot be taken as what? Optimum payout ratio, it cannot be taken as optimum payout ratio, right? Because what? The rate of return, the rate of return is more, that is 20% is given. Rate of return is more, that is 20%. Then the cost of capital, that is capitalization rate, that is cost of capital, which is 10%. कितना बेटा? 10%. So it cannot be taken as optimum payout ratio, because what? The rate of return is more. Rate of return on investment is what beta? More, that is 20%. Then the cost of capital, and cost of capital is what? 10%. Okay, right? Nika, show here. So it cannot be taken as what? Optimum payout ratio, because the rate of return is more, that is 20%, than the cost of capital, which is what? 10%. Correct? So ultimately the market price per share, मतलब per equity share, the market price per share will further reduce. Market price per share will further reduce, right? If what? The
dividend payout ratio. If the dividend payout right, what if the dividend payout ratio? Acha, everyone first put your attendance fast. Everyone put your attendance fast. So the market price per share will further reduce if the dividend payout ratio is further reduced. If the dividend payout ratio is what beta further reduce. So this is the fundamental and technical analysis. आपको शो करना है, राइट है क्या कि अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिटर्न इज मोर. आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेटा, इधर ज्यादा है. रेट ऑफ रिटर्न इज मोर, दैट इज 20% देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट है. तो आप डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा भी सकते हो, बट अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कम करोगे, बराबर है, तो मार्केट प्राइस भी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यू हैव द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, विच इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट. सो नॉर्मली कंक्लूजन दिखाना है आपको, राइट है. मेन पार्ट आपको सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस आपका कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट योर मार्केट प्राइस. आफ्टर कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस यू हैव टू गिव द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट है. अगर कंक्लूजन बोला है एग्जाम में तो ही देना है, अदरवाइज मार्केट प्राइस विल बी द फाइनल आंसर. ओके, सो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करो. जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करने के बाद use your formula and calculate your market price and find out the answer easily, right. So ऐसे आपको सम सॉल्व करना है, याद रखो. समझा, मालूम पड़ा. हाँ, अभी एक प्रैक्टिस सम दे रहा हूं, उसमें देखो प्रैक्टिस में सुनो, एक चेंजेस क्या करना है, लिख लो साइड में बुक में. उधर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कर लो 20%. क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो कर लो 20%, बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वो प्रैक्टिस में करना. और फिर कितना मार्केट प्राइस आएगा वो निकालो और मुझे पर्सनली भेजो, ठीक है. वो प्रैक्टिस है आपका, राइट है. जिसका जिसका पर्सनली आएगा मेरे चैट पे आंसर, वो रिकॉर्ड रहेगा इंटरनल पर्पस के लिए, ठीक है. मालूम पड़ा. और एक्टिव पार्टिसिपेशन, और एक तरह से ये आपका होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट हो गया, याद रखना. सो 20% यूज करना है अभी. यही सेम सम रहेगा, सेम सम, सिर्फ आपको 20%, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा 20%, बस वही चेंज है, बाकी सब सेम. सो 6 का 20% कितना हो जाएगा, निकाल लेना, ठीक है. यस 1.2. ओके, बाकी सब इधर भी अर्निंग 6 ही रहेगा. फिर ये 6 माइनस जो भी आया आपका डिविडेंड वो निकालो, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है. गॉट इट. फिर बताना मार्केट प्राइस कितना आ रहा है आफ्टर दैट, ठीक है. तो ये सब लोग अच्छे से एक बार घर पे प्रैक्टिस करना. 20% के हिसाब से भी और 30% के हिसाब से तो किया ही आपने, राइट. तो प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब भी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे वो थोड़ा बड़ा